Good morning, friends. My name is Abhishek Sharma and I am studying CA Intermediate after passing CA Foundation from ICM Rani Ka Bagh, Amritsar. As we all know, becoming chartered accountant without proper guidance and coaching is a hard nut to crack. Let me help you out. ICM is known for its specialized coaching and guidance for CA and CS exams. Why so? Why it is different from other institutes? Let me tell you about that. ICM has a proper system of guidance for CA, especially for accounts, which is taught by Mr. Gautam Beri. I must say that he is a great teacher. Now, let's talk about the system. Now, first of all, he makes us write the notes for the whole chapter, which covers each and every concept. Next thing, if anything is left thereof, that too will be covered while solving the sum. Why so? There is a reason behind it, that those things are made to be taught with the help of a dedicated summer. Now, after writing all the notes regarding the chapter, we will solve ICM book. Now, what is ICM book? ICM book is nothing but a compilation of previous year question papers, RTPs, MTPs questions, and few questions modified by himself only. Now, nevertheless, he also recently added ICI module into it. What else is left? Even if after that any doubt is left, he will let us solve ICI module. Now, here comes the interesting part. After solving the ICM book, ICI module just feels like a piece of cake. Yes, it does. Now, last but not the least, to satisfy all the things, he made a test. While solving the test, we feel very motivated and very confident that we can also solve these sums in the examination. Even after the test, if any doubt is remaining, that too will be covered in after test discussion. Now, that was all. You know what is the most difficult part for a teacher while teaching? Is a connection. A connection between the teacher and the student. But this is not the case with the ICM. Here a connection is built between the teacher and the student by a personalized interaction, friendly chit-chats, jokes by Gautam sir while studying. Now these all things not just only makes us comfortable to freely ask the doubts, but also makes the study interesting. So why are you waiting for? Let's join ICM and study with me. And one more thing, let's study systematically. Thank you very much. Hello everyone, myself Harmanjeet Kaur and I am a student of CA Intermediate. My journey as a CA student started with ICM in CA Foundation. It is commonly said that CA is exceptionally difficult to clear. But don't worry guys, we have ICM with us. ICM staff is highly dedicated, especially Gautam sir. All the efforts that sir has invested in bringing out the best in us can never be described in words. Even during the period of COVID-19 pandemic, we never faced any problem because ICM team is committed. Okay guys, a very good afternoon बेटा. हम लोगों ने कल, जैसा कि सारे बच्चे जानते हैं भाई, हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट करा था भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट. याद है सारे बच्चों को बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट. भाई साहब जो बच्चे ऑनलाइन में हैं, मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? सारे बच्चे एक बार चेक कर लेना. कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? सो भाई हम लोगों ने कल कैश फ्लो करा था. एक बार ना मैं आपको कैश फ्लो जो है थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं कि कल हमने करा क्या था. देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कल हमने पहले मीनिंग करा था. सारे बच्चे याद करो भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या करा था दोस्त? कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपके पास एक स्टेटमेंट होती है जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड किया जाता है कि पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है. ये बात याद रखना. इसमें मैंने कल आपको टर्म सिखाई थी, अगर बच्चों ने चेक करा होगा तो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. ठीक है? तो मतलब जो कैश के बराबर होता है, हमने कल ये चीज करी थी, एनीथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू कैश. चलिए, फिर मैंने कल आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कराई थी कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर. वी हैव डिस्कस दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स. इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या थी? पहला था कैश फ्लो. कैश फ्लो का मतलब होता है पैसा आना या जाना. ठीक है? कैश की मूवमेंट आई या कैश की मूवमेंट गई, इसको हम लोग क्या बोलते थे? कैश फ्लोस. ठीक है? और आपको याद होगा मैंने आपको इसमें एक चीज बताई थी, कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि कैश फ्लोस के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुड्स को बेचा, पैसा आया, डेटर से पैसा रिसीव करा, हमने फिक्स्ड एसेट को सेल करा, आपने गुड्स के कैश परचेस करे, पैसा गया, हमने क्रेडिटर्स को पे करा, मनी गोज आउट, आपने फिक्स्ड एसेट्स
परचेस करा, मनी गोज आउट। तो ये थोड़ा कल का बेटा रिपीट करा रहा हूं एक बार, जल्दी से देख लो। अच्छा, फिर जैसे सपोज हमने इक्विटी शेयर इशू करे, पैसा आया, इक्विटी शेयर का पैसा वापस करा, पैसा गया, लोन बोरो करा, पैसा आया, लोन रीपे करा, पैसा गया। बेटा एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? ये कल का पार्ट है जो हम कल रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने कल एक आपको टर्म कराई थी, क्या? दैट वाज कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या था? मैंने कहा था कोई भी ऐसी हाईली मार्केटेबल लिक्विड सिक्योरिटीज जिसको आप इमीडिएटली जब मर्जी चाहो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपके पास सारी की सारी वो सिक्योरिटीज विच आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। बेटा जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपके पास शेयर्स पड़े हैं, आप जब मर्जी चाहो मार्केट में जाके बेचो, पैसा आपको आ जाएगा, राइट? तो वो सारी की सारी आपकी कैश इक्विवेलेंट के बराबर आती है। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। एक बार थोड़ा कल का याद आ जाएगा, बड़ा अच्छे से सुन लेना सारे। नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या थी? जो ट्रांजैक्शन कैश इन्वॉल्व नहीं करती। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। मैंने एग्जांपल दिया था, आपने शेयर इशू करे और उसके बदले क्या खरीद लिया? एसेट। याद आया? शेयर इशू करे, उसके बदले क्या खरीद लिया? एसेट। आपने सपोज कर लो किसी डिबेंचर की पेमेंट करनी है, डिबेंचर का पैसा देने के लिए आपके पास कैश नहीं है, आपने उसके बदले शेयर्स दे दिए। आप एसेट्स पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो, ये नॉन कैश होता है। कोई फिक्स्ड एसेट को राइट ऑफ करते हो, ये भी नॉन कैश होता है। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था बेटा 3 चीजें जो आपने सेल्फ स्टडी में पढ़नी है। कौन कौन सी? ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। ये हमने 3 चीजें सेल्फ स्टडी में पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट फिर हमने डिस्कस करा था भाई बिजनेस एक्टिविटीज को हम 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। याद है बच्चों को? कौन कौन सी थी? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग के बारे में इन डिटेल हमने कल डिस्कस करा था। मैं एक बार आपको ऑपरेटिंग दोबारा से याद कराता हूं। ऑपरेटिंग क्या था? सारी की सारी वो एक्टिविटीज जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होती है। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस, दैट मीन्स जो आपको बिजनेस का रेवेन्यू कमा के देती है। मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बड़े सारे एग्जाम्पल दिए थे। अगर आप एक ट्रेडिंग कंपनी हो, याद करो, अगर आप एक ट्रेडिंग कंपनी हो तो ट्रेडिंग कंपनी क्या करती थी? आपने गुड्स को बेचा, गुड्स को बेचा, पैसा आया, गुड्स को बेचा, पैसा आया। याद रखना, इनफ्लो। गुड्स खरीदे, पैसा गया, ये क्या था? आउटफ्लो। आपने डेटर से पैसा रिसीव करा, बेटा डेटर से पैसा रिसीव करना, ये क्या था? इनफ्लो। आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, ये क्या था? आउटफ्लो। आपने कोई कमीशन रिसीव करी, कोई रॉयल्टी रिसीव करी, ये सब क्या था? इनफ्लो। आपने बिजनेस के खर्चे पे करे, फॉर एग्जांपल सैलरीज पे करी, आपने वेजेस पे करी, बिजनेस के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पे करे, आपने कोई सेलिंग एक्सपेंस पे करे, ये सब क्या था बच्चा? आउटफ्लो। तो ये सारे बच्चे याद रखना। इनकम टैक्स पे करा, तो ये सब आपके लिए आउटफ्लो था। फिर बच्चे याद करो, मैंने कल आपको 2 कंपनीज के बारे में बताया था। एक कंपनी होती है फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी का फंडा क्या था बेटा? जो आपको लोन देती है, ठीक है, या आपको कह लो किसी तरीके से फाइनेंस करती है, उसे हम फाइनेंस कंपनी बोलते हैं, राइट? तो अगर सपोज कर लीजिए हम बात कर रहे हैं कंपनी इज अ फाइनेंस कंपनी, मान लो आपको कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड आता है या सिक्योरिटी बेचकर पैसा आता है। अब देखो, एक फाइनेंस कंपनी का काम ही यही होता है। मैंने कल भी बताया था, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंस कंपनी का काम ही यही होता है। फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है? उन्होंने अपना इंटरेस्ट रिसीव करना है, डिविडेंड रिसीव करना है। सारे बच्चों को पता है डिविडेंड क्या होता है? शेयर्स का जो पैसा होता है ना बेटा, शेयर्स का प्रॉफिट जो हमें आता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। और अगर मान लो कोई लोन दिया हुआ है किसी को, तो वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि हमारा काम है लोगों को लोन देना। अब अगर मान लो हमारे पास कोई सिक्योरिटी है, हम सिक्योरिटी को सेल करते हैं, अगर हम सिक्योरिटी को सेल करते हैं हमें पैसा आता है, सो दैट इज बेसिकली माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद रखना, क्योंकि मैं फाइनेंस कंपनी हूं। तो मैंने कल भी कही थी बात, ये आज दोबारा रिपीट करता हूं, आपको क्वेश्चन के टॉप में पढ़ना पड़ेगा कि कहीं क्वेश्चन फाइनेंस कंपनी का तो नहीं है। बेटा याद रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ऑल द पार्ट्स। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी
इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ऑल द पार्ट्स। ये बात दिमाग में रखना। व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन में ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कुछ ना मेंशन हो तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि वो ट्रेडिंग कंपनी है। अगर कुछ ना मेंशन हो तो आप क्या मान लेते हो? वो एक नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी है। फाइनेंस कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी आपने तब मानना है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होगी। बेटा ये बात याद रहेगी। चाहे तो बच्चे इसको लिख लो कि भाई इफ नथिंग इज गिवन वी कैन एज्यूम इट टू बी अ ट्रेडिंग कंपनी। चाहे बच्चे इसका नोट बना लो कि इफ नथिंग इज गिवन वी कैन एज्यूम द कंपनी टू बी अ ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है। फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अपनी मर्जी से नहीं मानना। फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपने तभी मानना है जब क्वेश्चन में आपको उसके रिलेटेड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होगी। ओके तो भाई आपको याद होगा मैंने इंश्योरेंस कंपनी के बारे में भी बताया था कल, और मैंने कल आपको एक बताया था रियल एस्टेट कंपनी के बारे में। रियल एस्टेट कंपनी विच डील्स इन प्रॉपर्टीज। रेंट रिसीव करना आपके लिए क्या था भाई? रेंट रिसीव करना आपके लिए क्या था? इनफ्लो। रेंट किसी को पे करना आपके लिए क्या था? आउटफ्लो। ओके गाइस, सारे बच्चों को थोड़ा कल का याद आ गया? ठीक है, अब आज का मुद्दा करते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अच्छे से समझिएगा। मैंने कल आपको क्या बताया था? मैंने कहा था बच्चा हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज ऑपरेटिंग, अदर इज इन्वेस्टिंग एंड तीसरा क्या था? फाइनेंसिंग। तो आज हमने ये 2 पार्ट्स कवर करने हैं। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, मैं इन्वेस्टिंग कंपनी की डेफिनेशन बाद में समझाता हूं। पहले सारे बच्चे मुझे एक चीज सोच के बताओ, इन्वेस्टिंग क्या होता है? कहीं पे पैसा लगाना। इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? कि हमने कहीं पे पैसा लगा दिया उसको इन्वेस्टमेंट बोल दिया। यही हो गया ना भाई। तो अब मुझे एक बात बताओ, किसी के पास सरप्लस पैसा है तो आदमी घर पे रखता है कि कहीं पे इन्वेस्ट करता है? इन्वेस्ट करता है, होता है ना। तो बिजनेस में भी यही होता है कि जब किसी के पास सरप्लस पैसा होता है तो आदमी क्या करता है? आदमी उसको इन्वेस्ट करता है। इज दैट क्लियर? Whenever a person has a surplus money, उसका पहला मुद्दा क्या होगा कि चल यार इसको ना हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो पैसा जाएगा, जब वो इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो पैसा आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो पैसा जाएगा, मेरी बात को समझ लेना। और जब वो इन्वेस्टमेंट सपोज कर लो बेचता है, मान लो मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, आज मुझे पैसे चाहिए, मैं उस इन्वेस्टमेंट को सेल करता हूं, सेल करूंगा तो मनी विल फ्लो इन। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस। चलो अब सुनो, तो हम लोगों ने बच्चा आज यही कहानी करनी है। मूविंग ऑन टू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हेडिंग लिखो सारे बच्चे, पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है बच्चा? इट इज कॉल्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जल्दी से सारे बच्चे प्लीज हेडिंग लिख लो। इट इज कॉल्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है? लिखो, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, आपको याद है बेटा AS3? मैंने कल क्या बोला था कि कैश फ्लो का सारा पोर्शन AS3 के अंदर है। As per AS3, investing activities are the activities related to acquisition and disposal of long-term assets. Acquisition का मतलब होता है खरीदना। अगर बच्चों को थोड़ी अंग्रेजी नहीं आती भाई, याद रखना, एक्विजिशन का मतलब होता है खरीदना, डिस्पोजल का मतलब होता है कोई चीज को सेल करना। इफ यू डोंट नो दिस, आप चाहो तो इसका मीनिंग यहां पे साइड पे लिख सकते हो। एक्विजिशन का मतलब होता है व्हेन यू परचेज समथिंग, व्हेन यू परचेज समथिंग। डिस्पोजल का मतलब होता है व्हेन यू सेल समथिंग। ठीक है, सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज which related to acquisition and disposal of long-term assets and other investments. जल्दी से लिख लो भाई, and other investments मतलब investing activities
ये बेसिकली वो एक्टिविटीज हैं जो आपको क्या बताती हैं कि भाई हमने कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेचा या खरीदा। बेचोगे तो पैसा आएगा, खरीदोगे तो पैसा जाएगा, ये बात याद रखना। ओके, आगे लिखिए, दीज एक्टिविटीज इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग, these activities includes transactions involving purchase and sale of long-term productive assets, purchase and sale of long-term productive assets like machinery, land and building, etc., which are not held for resale, अब भाई बच्चों के मन में सवाल, सर इसका मीनिंग जरा क्लियर करो। देखो दोस्त, बहुत सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, आपके पास आपका सपोज बिजनेस है कपड़ों का, ठीक है। अब मान लो कपड़ों के बिजनेस को करने के लिए आपने एक शॉप ली हुई है, आपने एक शॉप बाय करी, सपोज शॉप के आगे बिल्डिंग, आपने एक बिल्डिंग बाय करी हुई है। अब आप मुझे बताओ, बिल्डिंग को आप क्या रोज बेच खरीद रहे हो? आर यू सेलिंग द बिल्डिंग एवरी डे? आर यू बाइंग द बिल्डिंग एवरी डे? नो, यू विल बाय इट ओनली वंस। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। यू विल आइदर सेल द बिल्डिंग वंस और यू विल बाय इट ओनली वंस, राइट। सो बेसिकली यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो एसेट आते हैं जिसको हम रोज बाय या सेल नहीं करते। बेटा बात समझ में आ रही है? जिसको हम रीसेल के लिए नहीं रखते। अब जैसे मान लो अगर मेरा बिजनेस है, मान लो मेरे पास एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। अब मान लो मैं कपड़े जो है रेडीमेड गारमेंट्स, उसको मैं रोज बेचूंगा, खरीदूंगा। जो मैं उसको बेच खरीद के पैसा आता है उसे मैं कहता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो मेरे लिए गुड्स हैं। अब बच्चों को थोड़ा डिफरेंस समझ में आना चाहिए, वो क्या है? गुड्स। तो मेरा कहने का मतलब भाई नींद खोल के सुनना, क्योंकि ये चीजें अगर तुम्हें अभी समझ में नहीं आई ना तो क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत होगी। जब तुम गुड्स को बेचते खरीदते हो उसे हम कहां डाल देते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई एम नॉट हियरिंग, क्या बोल रहे हैं बच्चे? ऑपरेटिंग। एवरीबडी इज क्लियर? जब मैं एसेट को बेचता खरीदता हूं अदर देन गुड्स को छोड़ दूं, बाकी मेरे दूसरे एसेट हैं, कोई लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, उनको बाय या सेल करता हूं तो वो मेरा कहां जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा एवरीबडी इज क्लियर? ठीक है। सो एवरीबडी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो इन्वेस्टिंग के मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा, देखिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मेरा कैश इनफ्लो क्या है? अगर मैं आपसे बात करता हूं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बेटा फिक्स्ड एसेट मैंने सेल करा। आप मुझे बताओ फिक्स्ड एसेट सेल करके पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कम ऑन गाइस, आ रहा है कि जा रहा है पैसा? मनी इज फ्लोइंग इन, राइट। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, पैसा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आउटफ्लो। अच्छा, अब लुक एट द सेकेंड पॉइंट गाइस। सेकेंड पॉइंट ध्यान से देखना, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। नाउ व्हाट डू यू कॉल एज द वर्ड इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है व्हेन यू बाय एनी नॉन करंट और करंट other than marketable securities. याद रखना, when you buy anything in the form of asset but other than marketable securities. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पर ये वर्ड क्यों लिखा other than marketable securities? कोई बच्चा बता सकता है? क्योंकि जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं वो होती है कैश इक्विवेलेंट। वो क्या होती है? तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आती। बड़ा बच्चों को बात समझ में आ रही? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम रिपीटिंग इट फॉर द वन लास्ट टाइम। सी, सपोज कर लो आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए। बॉन्ड समझते हैं? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स खरीद लिए। आपने बॉन्ड्स खरीदे तो आपने अपना सरप्लस पैसा लगा दिया। मान लो हमारे मोदी भैया ने, मोदी भैया कौन है जी? हमारे प्यारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी।
हमारे मोदी सर जी ने, उन्होंने मान लो गवर्नमेंट के एक बॉन्ड्स निकाले, उन्होंने बोला बेटा जो बंदा इस पे इन्वेस्टमेंट करेगा उसको 10% साल का इंटरेस्ट मिलेगा। चलो फॉर एग्जांपल हमारे दोस्त हैं 3-4, उनके पास पैसा बहुत सरप्लस है, ठीक है, मान लो महाजन साहब हो गए, इनके पास वैसे ही पैसा सरप्लस है, मान लो रामपाल जी हैं, पैसा सरप्लस बहुत ज्यादा है, मान लो भल्ला साहब हैं, बहुत पैसा है, मान लो ग्रोवर जी हैं, बहुत पैसा है। कहते क्या करे इतना पैसा, वो करना क्या चाहते हैं भाई, चलिए यार इसको लगा देते हैं कहीं ना कहीं पे, वो इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इनका जो काम है ना, ये इनका काम ऐसा कि नहीं रेगुलर बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। मान लो इनका क्या काम है, मान लो इनकी कुल्फी की दुकान है, मान लो जो हमारे रामपाल जी हैं, मान लो बेटा इनका क्या, इनका लेडीज सूट का काम है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ग्रोवर जी क्या करते हैं बेटा, मान लो ग्रोवर जी का भाई सब्जी बेचने का काम है। मान लो भल्ला की क्या, भल्ला की पान की दुकान है। बेटा इनको छोटा मोटा मत समझना आजकल की डेट में, ठीक है, भल्ला पान भंडार फॉर एग्जाम्पल। तो भाई अब अगर सपोज कर लो ये जो ऐसे दुनिया के लोग हैं, बात को समझो दोस्त, इनके पास सरप्लस पैसा है। अब इनका ये नॉर्मल काम नहीं है, सरप्लस पैसा लगा रहे हैं, तो इनके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट्स है ना यार। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने परचेस करी इन्वेस्टमेंट, इन्होंने इन्वेस्टमेंट खरीदी, तो इनसे पैसा गया कि आया, पैसा गया, पैसा गया तो उसे क्या बोलेंगे, आउटफ्लो। अब अगर मान लो कि अचानक से मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, वो इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो पैसा आया तो क्या बोलेगा, इनफ्लो। भाई यही बोलेगा ना, पैसा आएगा तो इनफ्लो बोल देगा। अब मेरा मुद्दा ये है बेटा आप लोगों को समझाने का कि अब सपोज कर लो, मान लो हम एग्जाम्पल चेंज करते हैं, ये मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, मेरी बात को समझना। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो हमारे मोला साहब, मान लो मोला साहब की फाइनेंस कंपनी है, मोला साहब की क्या है बेटा, फाइनेंस कंपनी। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो भाई साहब ये हमारे मोला साहब हैं, इनका एक फाइनेंस कंपनी है मोला फाइनेंस लिमिटेड, ऐसे करके एग्जाम्पल ले लिया बेटा, ठीक है, एमएफएल करके इनकी कंपनी है, एमएफएल मोला फाइनेंस लिमिटेड। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इसको ऑन द सीरियसली सारे सुनना बेटा, मजाक में नहीं। अब अगर सपोज कर लो एमएफएल ने क्या करा कि इसने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी, अब मुझे बताओ इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट बाय करी ये उसको कौन सी एक्टिविटी मानेंगे, ऑपरेटिंग की इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग। अब देखो यही क्वेश्चन में फर्क पड़ता है। आदमी को ना याद रखना, अगर हम क्वेश्चन करते वक्त ऊपर हमने लाइन ही ना पढ़ी कि कंपनी है कौन सी, ऊपर लिखा हुआ फाइनेंस कंपनी और नीचे लिखा है उसने इन्वेस्टमेंट खरीदी, और तुम इन्वेस्टमेंट को कहां दिखा रहे हो, इन्वेस्टिंग कंपनी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के तौर पे, तुम्हारे मार्क्स वहीं पे कट गए। Guys, are you understanding what I'm trying to say? ठीक है, तो you have to be very careful. अब जैसे मान लो एक बंदा कौन था, मान लो बीपीबी भल्ला पान भंडार, फॉर एग्जाम्पल केवी डब्ल्यू, फॉर एग्जाम्पल भाई कृष्णम वेजिटेबल वाला, ठीक है, मान लो महाजन कुल्फी वाला। तो ये जो ब्रांड्स हैं ये अलग अलग ब्रांड्स हैं, ठीक है, मान लो रामपाल लेडी सूट्स। तो अब ये क्या है बेटा, ये डिफरेंट ब्रांड्स है, मेरी बात को समझो। ये जो ब्रांड्स हैं, अगर ये कोई फाइनेंस कंपनी नहीं है, अगर ये पैसा लगाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनके लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है बेटा। अगर मान लो एमएफएल अगर पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या बन जाती है। तो गाइस आई एम टेलिंग यू फॉर द वन लास्ट टाइम, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर डूइंग इट। कहीं पे फाइनेंस कंपनी लिखा हुआ आ गया, तुम्हारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। सो सारे बच्चे बेटा याद रखना। और दूसरी बात, यहां पर एक टर्म है कि जब भी तुमने सिक्योरिटीज लेनी है, तुमने लेनी है अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कौन सी लेनी है, अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। व्हाई अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिकॉज मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर माई सीई। सीई क्या होता है बेटा, कैश इक्विवेलेंट का शॉर्ट फॉर्म है, जो हम लोग यूज करेंगे सिर्फ अपने नोट्स के लिए। एग्जाम में ना लिखना बेटा, प्लीज डू नॉट यूज दिस एब्रीविएशन इन एग्जाम, इट्स नॉट अलाउड। अच्छा, अब बात को समझो। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक लिखते बेटा महाजन कुल्फी वाला, इन्होंने कहीं पे पैसा लगाया हुआ है, अब इनको इंटरेस्ट आ रहा है। बात को समझो बेटा,
महाजन कुल्फी वाले ने क्या करा, भी पैसा बहुत है, सरप्लस किया है, उसके पास मनी है, उसने पैसा लगा दिया, उसको पैसा आ रहा है वहां पर। अब पैसा आ रहा है तो बेटा इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट उसके लिए क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा एक और एग्जाम्पल चेंज करते हैं साथ साथ। एमएफएल याद है आप लोग को, क्या था, मोला फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। अब अगर मान लो मोला फाइनेंस लिमिटेड ने कहीं पे पैसा लगाया, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज द क्लासिफिकेशन यू रिक्वायर टू नो। गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखना बेटा, एमएफएल, महाजन कुल्फी वाला, तो ये एग्जांपल दिमाग में रखना। अब फॉर एग्जांपल मान लो डिविडेंड रिसीव हुआ, सेम पॉइंट। अगर एक फाइनेंस कंपनी नहीं है तो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, तो वो बेसिकली क्या हो गया, उसके लिए वो इन्वेस्टिंग हो गया। बट फाइनेंस कंपनी के लिए डिविडेंड रिसीव क्या होगा, ऑपरेटिंग। अच्छा अब एक बात समझो, रेंट रिसीव्ड, सर ये क्या होता है, रेंट रिसीव लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, मैं बताता हूं। एक एग्जांपल और लेते हैं रेंट रिसीव को समझाने के लिए। चलिए रेंट रिसीव को समझाने के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको याद है मैंने एक बताया था बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, रियल एस्टेट वाली। चलो अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट एजेंट अपना बिजनेस है, मान लो भाई जेपी लिमिटेड, जोशी प्रॉपर्टीज लिमिटेड। फॉर एग्जांपल फुल फॉर्म आ गया क्या, जोशी प्रॉपर्टीज लिमिटेड। बहुत बड़ा रियल एस्टेट का काम है, जेपीएल करके ब्रांड एक सपोज कर लो। अब मुझे बात बताओ, ये प्रॉपर्टीज को रेंट पे देकर रेंट रिसीव करते हैं, बताओ इनके लिए रेंट रिसीव कौन सी एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग। दैट्स अ पॉइंट, बिकॉज जेपीएल इज अ रियल एस्टेट बिजनेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, यही पॉइंट समझना है। जिसको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया ना भाई, तुम इस चैप्टर के भगवान हो गए हो, याद रखना। अब फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो रामपाल लेडी सूट्स, ठीक है, आरएलएस ब्रांड है। अब अगर सपोज कर लो भाई साहब आरएलएस ने क्या करा, उसके पास सरप्लस पैसा है, उसने क्या करा, एक साथ में प्रॉपर्टी खरीद ली। कहता बहुत पैसा है, क्या करें भाई, चल प्रॉपर्टी खरीद लेते। अब प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, कहता कोई साइड इनकम बनाते, ठीक है, साइड इनकम बनाते। उसने क्या करा, बोलता है यार एक बंदा उसके पास आया, उसका दोस्त है, मान लो बेटा वधवा, उसका दोस्त है। वधवा कहता है बोलो वधवा गर्ल्स हॉस्टल खोलना मेरे को प्रॉपर्टी में, ठीक है। वधवा साहब क्या बोल रहा है, बोलता है सर मेरे को ना वधवा गर्ल्स हॉस्टल खोलना है प्रॉपर्टी में, मेरे को प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए। बोलो भाई, रामपाल बोलता बहुत बढ़िया, भी गर्ल्स हॉस्टल साथ में खुलेगा, मेरी सूट की दुकान जो है वहां से सारे सूट बाय करेंगे, डबल बिजनेस। अब मुझे एक बात बताओ, वधवा गर्ल्स हॉस्टल ने उसकी प्रॉपर्टी रेंट पे लेकर इसको रेंट दिया। आप मुझे बताओ बेटा, वधवा गर्ल्स हॉस्टल ने इसको रेंट दिया। अब बताओ ये रामपाल लेडी सूट भंडार के लिए ये कौन सा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। तो बेटा ये बस खाली कहानी मत भूलना, तुम्हें बस क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे ये दिमाग में रखना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, फाइनेंस कंपनी कभी अपनी मर्जी से नहीं माननी। सब में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो नहीं है, नहीं तो ट्रेडिंग है, न तो नॉर्मल कंपनी है, ये बात याद रखो, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप बात समझो, इनकम टैक्स पेड है बेटा। अब ये पंगा है, सर इनकम टैक्स पेड तो ऑपरेटिंग में भी डाला था आपने, आप चेक करो। इनकम टैक्स पेड भाई साहब मैंने तो ऑपरेटिंग में भी डाल दिया था, बट आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं पढ़ा होगा, इनकम टैक्स पेड रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओनली। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बड़ा तगड़ा डिफरेंस है जो हमें समझना चाहिए। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग में भी आ रहा है, इनकम टैक्स पेड इन्वेस्टिंग में भी आ रहा है। सर ये पंगा क्या है बेटा, पंगा ये है, मेरे को एक बात बताओ, मान लो फॉर एग्जांपल फिर से ब्रांड लेते हैं, एक अपने ब्रांड हमने आज 2-3 क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या था, हाँ KVW, कृष्णम वेजिटेबल वाला। अब अगर मान लीजिए भाई, मान लो इन्होंने साल के एंड में सब्जियां बेच बेचकर अपना प्रॉफिट चेक करा, तो इनको पता लगा बेटा 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया इनको। मान लो भाई साहब साल के एंड में चेक कर रहा है, अपने इसने बैलेंस शीट बनाई, पीएल बनाया, सारा स्टेटमेंट तैयार करा, भाई साहब को 2 करोड़ का प्रॉफिट। अब इसके ऊपर मान लो ये टैक्स पे कर रहा है, मान लो इसके ऊपर ये फॉर एग्जांपल 60 लाख का टैक्स पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल 60 लाख सरकार टैक्स ले रही है इससे।
अब मुझे एक बात बताओ, 60 लाख का जो यहां पर भाई ये वेजिटेबल वाले ने टैक्स दिया, ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? ऑपरेटिंग, क्योंकि उसने अपने बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? उसने अपने बिजनेस के प्रॉफिट पे टैक्स दिया, तो मैं यही चीज समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब पॉइंट को समझो। फॉर एग्जाम्पल, अब भाई ये सब्जी वाले के पास पैसे ही बहुत है, अगले ने क्या करा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसने ना किसी कंपनी के, मान लो कोई अपनी कंपनी है एमएफएल करके, उसके डिबेंचर्स खरीद लिए, उसके डिबेंचर्स खरीद लिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दी, सरप्लस पैसा था उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब जब ये कंपनी उसको इंटरेस्ट पे करती है तो कंपनी ना उसमें टीडीएस काट लेती है, होता ना बेटा, मैंने बताया था कंपनी पहले से टीडीएस काट लेती है। तो भाई साहब टीडीएस तो अगले का कट गया, तो मुझे एक बात बताओ, जो अगले का टीडीएस कटा या उसने टैक्स उसके ऊपर पे करा बेचारे ने, तो ये कौन सा टैक्स है? ये इन्वेस्टिंग है, क्योंकि ये उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स है, ये उसके इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स है। बात समझ में आ रही है? तो अगेन दिस इज द पंगा विच वी हैव टू फॉलो, कि भाई जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे होगे ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि तुम्हारा इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग के लेकर है कि इनकम टैक्स पेड दोस्त तुम्हारा यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेकर। इसीलिए आप देखोगे मैंने ब्रैकेट में ना बड़े सही तरीके से लिख दिया है, इनकम टैक्स पेड रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ओनली। अच्छा, अब और सुनो, एक एग्जाम्पल और मजेदार आएगा बेटा, एक एग्जाम्पल और मजेदार आएगा। आप मुझे बताएंगे, उम्मीद करूंगा बच्चे साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे हैं, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड। दोस्त मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड की, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई एक हम लोग पर्टिकुलर ब्रांड फिर से लेते हैं, मान लो भाई भल्ला पान भंडार फॉर एग्जाम्पल, हमने 2-3 ब्रांड आज क्रिएट करें, इसके ऊपर एग्जाम्पल देंगे। मुझे एक बात बताओ दोस्त, ये ब्रांड आ गया बेटा बीपीबी। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका एक दोस्त है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसका एक दोस्त है, मान लो वधवा, वो उसके पास आ गया, बोलता है भाई एक काम कर, अच्छा भल्ला पान भंडार का काम किया बेटा, पान लगा के बेच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज कर लो वधवा इसके पास आ गया, बोलता है भाई थोड़ा लोन वगैरह देगा, मुझे पैसे चाहिए। कहता है डन यार, कोई बात नहीं, बहुत सरप्लस पैसा तू ले जा, तो एक काम कर मेरे से ना, उसने क्या करा, उसने उसको 1 करोड़ का लोन दे दिया, 1 CR का। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, उसने 1 करोड़ का उसको लोन दिया, भाई साहब अच्छे से सुन लेना, मुझे एक बात बताओ, चाहे दोस्ती है बट भल्ला पान भंडार बेटा अच्छा बिजनेसमैन भी है, वो बोलेगा भाई तेरे से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा मैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो इसने लोन ग्रांट करा है, ये भल्ला पान भंडार ने क्या सोच के लोन ग्रांट करा कि मैं पैसा लगा रहा हूं कहीं पे, मैं पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उसके बदले रिटर्न में क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, वापस एमएफएल फुल फॉर्म क्या था, मोला फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। अब अगर मान लो एमएफएल ने ऐसे ही वधवा को लोन दिया, तो अब ये एमएफएल ने जो लोन ग्रांट करा है, बताओ ये एमएफएल के लिए लोन ग्रांट क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट, क्योंकि इनका रोज का काम है, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा बच्चों को देखना पड़ेगा, तो याद रखना लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड, कोई शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, प्रोवाइडेड आपका बिजनेस लोन देने का ना हो, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अगर आपका बिजनेस लोन देने का है, आप फाइनेंस कंपनी हो, तो दोस्त वो आपके लिए क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, और सुनिएगा भाई, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। यार कई बार ऐसा होता है ना कि सपोज कर लो, मान लो बेटा मेरे को रिलायंस कंपनी के शेयर्स चाहिए, मैंने कहा यार बहुत वैल्यूएबल शेयर्स हैं, या टाटा के शेयर्स मुझे चाहिए, टाटा लिमिटेड के, मेरे को मिल नहीं रहे,
मैंने ना एक ब्रोकर पकड़ा मार्केट से, स्टॉक ब्रोकर, उसको बोला, मैंने कहा भाई तो एक काम कर, तू मेरे से ब्रोकरेज ले, एक्स्ट्रा कमीशन ले, मुझे उसके शेयर्स दिलवा। अब कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने के वक्त आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती। क्या पे करनी पड़ती है आपको? ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। तो बच्चा आपका पैसा जा रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है? योर मनी इज गोइंग आउट। सो इन दैट केस इवन दिस ब्रोकरेज पेड इज अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो भाई पहले सारे बच्चे जरा अपने दिमाग के ढक्कन खोल के देख लो कि तुम्हें इन्वेस्टिंग समझ में आ गया तो मैं फाइनेंसिंग पे आऊंगा। और बच्चा फिर से वही बात आखिरी बार बोल रहा हूं, यू शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी and investing activity, because there are certain activities which gives you a lot of confusion in putting it in either operating or investing. So in that case you have to memorize the brands which I have created today. समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो सारे बच्चे वो एग्जाम्पल याद रखना, इसलिए मैंने आपके बीच से एग्जाम्पल उठाया, तो ये बात दिमाग में रखना भाई। ओके बेटा, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डेफिनेटली होती है मेरे भाई। अब इनका सवाल आया, कहते हैं सर फाइनेंस कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? डेफिनेटली होती है भाई। सपोज कर लो एमएफएल है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, एमएफएल मोला फाइनेंस लिमिटेड, आपका मतलब क्या है? इसके पास क्या पैसा अंदर भर भर के पड़ा, वो जितना मर्जी लोगों को दान दे जाएगा? इसने भी आगे कहीं लगाया होता है पैसा। जो मनी होता ना बेटा मार्केट में, ये सर्कुलेशन में घूमता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल। बैंक, बैंक क्या है? एक फाइनेंस कंपनी तो है। तो बैंक में घूमता क्या? बैंक तो टोपी घुमा रहा है। बैंकिंग सिस्टम क्या है हमारी कंट्री का? जरा ध्यान से सोचो। मान लो इसके पास पैसा है, इसने जमा कराया, मैं बैंक हूं, मान लो मैं बैंक हूं, इसने मुझे दिया पैसा, इसको लोन चाहिए, ठीक है, मैंने इसको दे दिया। अब इसमें मुझे क्या फायदा हो रहा है? इंटरेस्ट का। मान लो मैं, ये मेरे को बोलेगा सर मैं आपको पैसे दे रहा हूं, मुझे कितना इंटरेस्ट दोगे? मैंने कहा तेरे को 5% दूंगा। वो बेचारा डांस करते हुए घर जा रहा है खुशी खुशी से। इसने मेरे से लोन बोरो करा, मान लो शर्मा जी ने मेरे से लोन बोरो कर लिया, ठीक है, तो लेडी शर्मा, सॉरी शर्मा जी वो नहीं, लेडी शर्मा, मान लो लेडी शर्मा ने हमसे लोन बोरो करा। अब लेडी शर्मा बोलती बोलती सर आपको मैं आपसे मैं लोन बोरो कर रही हूं, कितना परसेंट इंटरेस्ट? मैंने कहा बेटा 10%। अब यही तो बैंकिंग सिस्टम है। अब बैंक को 5% की कमाई है, उसी से बैंक अपनी सैलरी पे करता है। तो भाई ये मनी सर्कुलेशन में घूमता रहता है। सिंपल सी भाषा में इसको बोलते हैं टोपी घुमाना। पहले ये इलीगल होता था, आजकल जैसे क्रिप्टो देख लो ना भाई, क्रिप्टो पहले इलीगल होती थी, अब सरकार ने 30% टैक्स लगा दिया, क्रिप्टो को लीगल। क्रिप्टो पता सारे बच्चों को क्या होता है? आने वाले टाइम पे बेटा अपना इंडिया का भी ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी आ रहा है। चलो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब आगे आइए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखो भाई साहब, अब सारे बच्चे एक बात दिमाग में रखो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है। देखो फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, पहले बात को समझो भाई साहब। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? मुझे पैसा चाहिए, या पैसा मैं दूंगा या पैसा लूंगा। अच्छा एक बात समझाओ, 2 मिनट नोट मत करो, सुन लो। आप मुझे बताओ, कंपनी को जब पैसा चाहिए, कंपनी के पास पैसा बोरो करने का सोर्स क्या है? पब्लिक, सबसे बड़ा सोर्स जनता, ठीक है। क्या करती है कंपनी? मार्केट में शेयर लॉन्च कर देती है, जनता उनके शेयर्स खरीदती है, पैसा कंपनी को आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी क्या हो रही है? फाइनेंसिंग है। शेयर इशू करना, शेयर के पैसे वापस करना, डिबेंचर इशू करना, डिबेंचर के पैसे वापस करना, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। इनफैक्ट कंपनी व्हेन दे बोरो लोन्स फ्रॉम बैंक, फाइनेंसिंग। व्हेन कंपनी रीपे द लोन्स टू द बैंक, इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। सो फाइनेंसिंग क्या होता है बेटा? ध्यान से देखिएगा। Financing activities are the activities which results in the change in the size and composition of owner's capital. What is owner's capital? Shares. याद है सारे बच्चों को? तो याद रखना, जब हमारा
ओनर के कैपिटल में चेंज होता है, भाई साहब सारे बच्चे सुन रहे हो, ओनर के कैपिटल में जब कोई चेंज आता है, ओनर की कैपिटल बढ़ती या कम होती है, ठीक है, उसके साइज में, उसके कंपोजिशन में जब चेंज आता है, दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। तो याद रखना इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल्स। अच्छा, एंड बोरिंग्स। अच्छा, बोरिंग्स को हम लोग डिबेंचर्स भी बोलते हैं, एवरीबडी नोज भाई। बोरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स। तो सारे बच्चे याद रखना, तो इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं भाई, हमने पैसा लोन बोरो करा, हमने शेयर इशू करे, ठीक है, हमारे जो ओनर की कैपिटल के कंपोजिशन में चेंज आया, कैपिटल बढ़ी या कम हुई, ये सब कहानी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, राइट? अच्छा, इट इंक्लूड्स, अच्छा इतना नोट हो गया भाई, जितना मैंने ब्रैकेट लगाया उतना नोट हो गया, जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे चलता हूं। तो भाई साहब याद रखेंगे, इसमें लिखा है इट इंक्लूड्स प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब जो पैसा हमने शेयर से सारा का सारा अर्न करा, डिबेंचर से अर्न करा, लोन, बॉन्ड्स, सारे के सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट बोरोड। तो सारे बच्चे याद रखना भाई, सिंपल सी भाषा में बात करें, पैसा जब कंपनी को चाहिए होता है, कंपनी के पास सबसे बड़ा मेजर सोर्स होता है जनता, जनता के बाद आती बैंक, ठीक है। तो जनता मतलब क्या हो गया? पब्लिक। पब्लिक से पैसा लिया, कंपनी ने उसको शेयर्स दे दिए, पब्लिक से पैसा लिया, कंपनी ने उसको डिबेंचर दे दिया। जब पब्लिक का पैसा वापस करा, तो ये सारा प्रोसेस जो होता है इसको फाइनेंसिंग का पार्ट करते हैं। फिर अगर मान लो बैंक से लोन बोरो करा, फाइनेंसिंग, बैंक को रीपेमेंट करा, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। सो अपने को ये क्लासिफिकेशन जो है भाई ये क्लियर होना चाहिए। दोस्त चले आगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इनफ्लो और आउटफ्लो के होंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के, जो मैं आपको यहां पर क्लैरिफाई करूंगा भाई, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आई होप दिस इज नोटेड, ठीक है दोस्त। फाइनेंसिंग के एग्जाम्पल सुन लो, बड़े सिंपल है। कैश इनफ्लो क्या होता है? शेयर का पैसा आया कैश में, डिबेंचर का पैसा आया कैश में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। कोई भी आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करी, आपने क्या करा बेटा? लोन बोरो करा, पैसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा याद है कंपनी को कोई सिक्योरिटी प्रीमियम आता है भाई साहब, कंपनी को जब कोई सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, वो भी तो कंपनी के पास सरप्लस पैसा ही आ रहा है। 10 रुपए का शेयर कंपनी 12 में दे रही है, तो कंपनी को 2 रुपए सरप्लस ही आ रहा है। तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मार्क माय वर्ड्स, बच्चे ना गड़बड़ करते हैं। शेयर इशूड एट प्रीमियम, जो प्रीमियम आ रहा है वो भी आपका फाइनेंसिंग का पार्ट है। अच्छा आपको पता है कई बार लोग कॉल्स इन एरियस कर जाते हैं, हमने एक चैप्टर करा था
शेयर कैपिटल, उसमें लोग कॉल्स इन एरियस कर जाते थे। जब कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है एरियर्स पे, तो दोस्त इंटरेस्ट जो कंपनी चार्ज कर रही है तो वो भी बेसिकली क्या है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे बात करता हूं आउटफ्लोस की, आउटफ्लोस सुनो। मान लो दोस्त कोई लोन का पैसा वापस करना, प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करना, डिबेंचर का पैसा वापस करना। अच्छा, व्हाट इज दिस टर्म, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी कई बार अपने इक्विटी शेयर मार्केट से वापस खरीद लेती है। कंपनी क्या करती है, अपने ही इक्विटी शेयर मार्केट से वापस खरीद लेती है। इसको क्या बोलते हैं भाई, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसके लिए तो पैसा देना पड़ेगा, हाँ जी। नहीं बेटा, बर्न नहीं करती। इसका मतलब यह होता है कि कंपनी ने वापस खरीद लिए, कंपनी उसको रीइश्यू करना चाहे तो ठीक है, वरना कंपनी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, याद रखना। डिविडेंड का पेमेंट करना, अच्छा डिविडेंड की पेमेंट करना, यह भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। क्योंकि कंपनी ने जब शेयर इशू करे तो कंपनी को उसके बदले क्या पे करना पड़ेगा, डिविडेंड। कंपनी ने शेयर इशू करे, क्या पे करना पड़ेगा, डिविडेंड। कंपनी ने लोन बोरो करा, कंपनी को उसके बदले क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। बच्चा लोग याद रखना, कंपनी ने लोन बोरो करा, कंपनी को उसके बदले क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अच्छा, इस पॉइंट को समझे। प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये क्या है सर? यार होता नहीं कई बार, जैसे मान लो आपने डिबेंचर 100 रुपए का है, आपने वादा करा सर मैं आपको 120 रुपए वापस करूंगा। क्या वादा करा आपने, मैं आपको 120 रुपए वापस करूंगा। ये जो 20 एक्स्ट्रा वापस करना है, इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा तो वो भी कहां जाता है, फाइनेंसिंग में। और अगर मान लो इनकम टैक्स, सर इनकम टैक्स हर एक में आ रहा है, हाँ जी बेटा, तो ये सब में लिखा होता है। इनकम टैक्स अगर मान लो बिजनेस से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो किधर, इन्वेस्टिंग। और अगर सपोज कर लो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो वो किधर चला जाता है, इधर फाइनेंसिंग में। कोई लोन रीपे करा, कोई ब्रोकरेज पे करी आपने, जैसे होता ना कई बार शेयर इशू करने के टाइम पे, याद रखना दोस्त। अच्छा बच्चे ना जल्दबाजी ना करो, मैं नोट करने का टाइम दे दूंगा, पहले समझ लो, अच्छे से समझ लो दोस्त, जल्दबाजी मत करो, नोट करने का टाइम तुम्हें मिल जाएगा। मान लो बेटा ब्रोकरेज और तुमने कोई कमीशन पे करी, तुमने शेयर इशू करे, तुम्हारे मान लो शेयर नहीं बिक रहे मार्केट में, तुम एक नई कंपनी हो, तुम्हारे मार्केट में कोई शेयर खरीद नहीं रहा, तुम उसके लिए क्या पे कर रहे हो, ब्रोकरेज। तो भाई जब तुम ब्रोकरेज पे करते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग का पार्ट है, बिकॉज यू आर पेइंग ब्रोकरेज टू इशू योर शेयर्स, राइट। अच्छा, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे कहते हैं डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट। ये फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। ये ना बहुत बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं सर, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश का पार्ट है, नहीं। याद रखना, मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है 10,000 था, कहते 10,000 से 3,000 हो गया, तो इसका मतलब होता हमने 7,000 वापस कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, हमने 7,000 वापस कर दिया। दोस्त याद रखना, इसका मतलब होता हमने 7,000 वापस कर दिया। तो याद रखना, इसको अच्छे से समझ लेना कि कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट में डिक्रीज होगा, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट में डिक्रीज होगा, कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट में डिक्रीज होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आप इसको नोट करें, मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं सारा, बट आप लोग पहले नोट कर ले। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बच्चा क्या है, अच्छे से सुन लो। पहले आपको ये वाला पेज रिपीट कर देता हूं दोबारा से, और आप लोग साथ साथ नोट भी कर सकते हो। शेयर इशू करा, डिबेंचर इशू करा, लोन बोरो करा, पैसा आ रहा है, इनफ्लो। लोन वापस करा, शेयर का पैसा वापस करा, डिबेंचर का पैसा वापस करा,
कोई भी इक्विटी शेयर मार्केट से बायबैक करे, ठीक है, कोई भी डिविडेंड पे करा, ये क्या बेटा पैसा जा रहा है, फाइनेंसिंग। थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा। अब सुनिए, ओके बेटा ये सारे नोट हो गए। जल्दी से भाई बच्चे पहले देख लो, इफ इट इज ऑल नोटेड डू लेट मी नो। Can I suppose? फिर इसमें मैंने आपको बताया था भाई, तुम सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव करते हो, मनी कम्स इन। एरियर्स पे इंटरेस्ट रिसीव करते हो, मनी कम्स इन इनफ्लो फॉर फाइनेंसिंग। तुम इंटरेस्ट पे करते हो, लोन्स पे करते हो, डिबेंचर्स पे करते हो, इंटरेस्ट वगैरह सारा सब फाइनेंसिंग। डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स का जब आप पैसा वापस करते हो, समटाइम्स यू पे प्रीमियम। जब आप एक्स्ट्रा प्रीमियम मनी वापस करोगे, दैट इज ऑल्सो योर, याद रखना, पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Any sort of income tax paid, loans repaid, brokerage and underwriting commission paid, it's a part of financing. Which I hope everyone is clear with this, right? तो आप लोगों ने अभी क्या करना है, कल तक ना खाली इसको मेमोराइज करिए कि क्या ऑपरेटिंग है, क्या इन्वेस्टिंग है, क्या फाइनेंसिंग है। इसको लर्न करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। मैं आज अभी इतने पे रोक दूंगा। एवरीबडी शुड ओनली मेमोराइज दिस, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।